Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So we were doing class 9th book NCRT, that is chapter number work and energy, and we have done till kinetic energy and potential energy. So today we will see mechanical energy. See, in the last video we have seen about kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is due to the motion and potential energy is of two types. One is due to configuration and another is due to the height. So elastic potential energy and gravitational potential energy. In elastic potential energy, it is due to configuration, change of shape, due to configuration, and gravitational is due to height, and gravitational energy is due to height. So we have seen some of the examples related to elastic potential energy and gravitational potential energy. Kinetic energy is due to motion only, but potential energy is of two types, elastic and gravitational. Example of elastic potential energy: when we stretch a rubber band, the rubber band will regain its shape, that is change in shape, configuration change हो रहा है, that will be elastic potential energy. And when we lift any object, it attains a height, it is gravitational potential energy. Now some bodies have both kinetic energy as well as potential energy. Suppose an aeroplane is flying. So aeroplane is at some height. Obviously it will be at a height and it will be in motion. It will be moving. It will be in motion and it is at height. So it has both kinetic energy and potential energy. And which potential energy? Gravitational potential energy. So the objects having both energies, kinetic energy and potential energy, they have mechanical energy. Mechanical energy. So mechanical energy is potential energy plus kinetic energy. Bodies having both energy, potential energy and kinetic energy. Now think of some other objects having both types of energies, kinetic energy and potential energy. First example is aeroplane flying. Second example, bird flying, because birds also fly at some height and they are in motion. Bird flying is another example of mechanical energy. Water stored in dam. If water is stored in dam, then it has only potential energy. But if water is flowing from the dam from some height, then it will have both energies, kinetic energy as well as potential energy. So the objects having both energy, kinetic as well as potential, they have mechanical energy. Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Now to understand this, let's take an example of a ball. Suppose we have thrown a ball at some height. This is the ground level and we have thrown the ball at some height, this height. Now if the ball is lying here, it will only have if the ball is on the ground, it will have no energy, neither kinetic energy nor potential energy. But if it is moving on the ground, it will have kinetic energy. Now this ball is at some height, suppose 20 meter above from the ground. This ball will have potential energy. Now if this ball will start falling from this height, it will come back to its original position. Now when this ball is falling, obviously it is above the ground. At this stage, the ball is here. It will have both kinetic energy as well as potential energy. It will have mechanical energy. At this point also it will have mechanical energy. At this point, mechanical energy. Here also the ball will have mechanical energy. And after coming to the ground, it will roll down and will finally stop at some point. It will not stop immediately after hitting the ground. It will stop after some time. So it will have kinetic energy. And when the ball stops, no energy. Now, if a ball is having kinetic energy, potential energy or mechanical energy, you have to remember one thing, that kinetic energy plus potential energy should be equal to mechanical energy. That means the sum of kinetic and potential energy will always be equal to mechanical energy at any point. जैसे ये भी बहुत सारे points हैं, इन सब point पे इनका जो sum होगा वो equal होना चाहिए. देखते हैं, समझते हैं कैसे. Suppose यहाँ पे 20 joules है.
एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स. बी इट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, द यूनिट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट विल बी जूल्स. सपोज हेयर the ball is having 20 joules of energy. Which energy? Potential energy. Now at this point it has both kinetic energy plus potential energy. Now it will have potential energy and kinetic energy, but the amount of potential energy will be more because the ball is at some height. और इसने अभी तो गिरना स्टार्ट किया है, तो इसमें इसकी स्पीड बहुत कम होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, 5 जूल्स होगी, और पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल्स होगी. अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 20 जूल. इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी के ही इक्वल आएगा. मतलब इन दोनों का सम हमेशा ये सेम होगा. अब देखो इस पॉइंट पे आ गई है बॉल, अब कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें आई होगी, सपोज 10 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें 10 जूल्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 जूल्स. ऐसे करके आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो वो इक्वल ही आना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा इक्वल आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है. हर पॉइंट पे इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा. इस पॉइंट पे कितना होगा? सपोज काइनेटिक एनर्जी अब और बढ़ गई, 15 जूल हो गई, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 5 जूल्स हो गई. अब इसका हम सम निकालेंगे तो फिर से 20 जूल्स. So at every point the sum will remain the same. That means mechanical energy हर point पे same होगी. Kinetic energy और potential energy vary करेगी, but mechanical energy हर point पे same होगी. किसी भी object के लिए, किसी भी ball के लिए, हर चीज़ के लिए जो mechanical energy होगी वो हमेशा same रहेगी. So in the last video we have seen, we have done some numericals also. We have seen the formula. What was the formula of kinetic energy? Half mv square. And what was the formula of potential energy? mgh. M for mass, g for gravity, and h for height. Here m for mass and v for velocity. Now let's start the next topic, that is power. Power rate of doing work. अब देखो हमने एनर्जी देखा. एनर्जी होता है द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. ऐसे ही पावर होता है. पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. दैट मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई भी इंसान कितना काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पार. पार का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. जब भी रेट आएगा यू हैव टू रिलेट इट विथ टाइम. रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम. अब देखो सबकी पार डिफरेंट होती है. आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा उसका काम करने का तरीका अलग होता है. कोई ओल्ड एज है उसका काम करने का तरीका अलग होता है. दैट मीन्स कितने टाइम में वो कितना काम कर सकते हैं. जैसे आप हो और सपोज आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, आप 1 घंटे में बहुत काम कर सकते हो, लेकिन वो उतना काम नहीं कर सकते, यानी कि उनकी पार कम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कम है. तो एक ओल्ड एज इंसान का रेट ऑफ डूइंग वर्क कम होगा, एक यंग का ज़्यादा होगा. तो ये होता है पार. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन दिस पेज, रेट ऑफ डूइंग वर्क. लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस रेट ऑफ डूइंग वर्क. एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पार. डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? नहीं ना. आपने देखो स्कूल में भी देखा होगा, जब भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं कुछ बच्चे कितनी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं नोट डाउन करने में. तो सबका रेट डिफरेंट होता है, और रेट को हमेशा किससे रिलेट करना है? आपको टाइम से रिलेट करना होता है हमेशा रेट को. जब भी रेट वर्ड लिखा आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मूला में हो, किसी भी डेफिनेशन में हो, हमेशा आपको रेट वर्ड को किससे रिलेट करना है? टाइम से. सो डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? मशीन्स के भी तो डिफरेंट रेट होते हैं. अगर एक न्यू मशीन है, वो न्यू मशीन है तो वो जल्दी जल्दी काम करेगी, लेकिन जैसे ही वो डिग्रेड होने लगती है उसकी भी स्पीड कम हो जाती है, यानी रेट कम हो जाता है. एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द एक्टिविटी. यू कैन रीड दिस एक्टिविटी. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, वही होता है बस रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना कोई काम कितने टाइम में कोई भी काम कितना कर सकता है, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. 1 घंटे में अगर आप सपोज करो 10 ब्रिक्स उठा सकते हो, लेकिन कोई ओल्ड एज इंसान 1 घंटे में सिर्फ 5 ब्रिक्स उठाएगा, तो किसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है? यंग का, एज कम्पेयर टू ओल्ड. एंड द फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. नाउ लेट्स रीड फ्रॉम दिस द यूनिट. From this page, the unit. What will be the unit of power? It will be watts. What was the unit of energy? Joules. And what is the unit of time? Seconds. So the unit of power will be joules.
The unit of power is joules. Power is equals to work divided by time. That means एक पर्टिकुलर टाइम में कोई कितना काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं पावर. एंड व्हाट विल बी द यूनिट? द यूनिट विल बी वॉट्स. What was the unit of work? Joules. And what was the unit of time? Seconds. So it is joules per second. Joule per second is known as watts. It is the unit of power. We also have a bigger unit, that is 1 kilowatt. In kilowatt it will be into 1000. There is one another unit, kilowatt hours. Whenever you have to calculate the electricity bill, we calculate it in hours. Another unit is 1 horsepower. 1 horsepower has how many watts? 746 watts. So ये कुछ यूनिट्स हैं पावर की, ये फॉर्मूला है. इस पे बेस्ड ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. कोई इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट. किसके नाम पे रखी गई है? जेम्स वॉट. हैविंग द सिंबल W. व्हाट विल बी द सिंबल? कैपिटल W. So yes, 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second, because the unit of work is this. So 1 watt will be equal to 1 joule divided by 1 second. So 1 watt is 1 joule per second. We can also say that the power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second, and 1 watt is equals to 1 joule per second. 1 kilowatt has 1000 watt. एंड द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम. अब देखो टाइम के साथ वेरी करता है, सबका रेट डिफरेंट होता है. दिस मीन्स दैट एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. क्योंकि सबके काम करने की स्पीड डिफरेंट होती है तो रेट भी डिफरेंट होगा. देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल. वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम टेकन. अब सपोज एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे लेबर्स हैं, सबका काम करने का स्पीड अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, यानी कि सबका रेट अलग है, सबकी पावर अलग है. तो अगर हमें पता करना हो कि इस फैक्ट्री में वर्कर्स कितने घंटे में कितना काम करते हैं, तो सबके हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे. वी विल कैलकुलेट द एवरेज पावर. एवरेज पावर इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर. ये हम जब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत बल्क में निकालनी होती है पावर. जैसे फैक्ट्रीज में हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स हैं तो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. लेकिन आपको जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आएंगे वो किसी एक मशीन पे बेस्ड आएगा, किसी पर्सन पे बेस्ड आएगा, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम. लेकिन जब हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स होंगे, किसी फैक्ट्री की बात होगी, तब आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सबका आपको वर्क डन ऐड करना है, सबका टाइम ऐड करना है और एवरेज पावर निकल जाएगी. टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम और टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब देखो जैसे एक न्यूमेरिकल है, 2 गर्ल्स, ये 11.7 न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में. 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one girl as A and another girl as B. अब गर्ल ए को 20 सेकेंड लग रहे हैं उसको चढ़ने में, लेकिन गर्ल बी को 50 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो किसकी पावर ज़्यादा है? गर्ल ए की पावर ज़्यादा है. ईजी है फॉर्मूला. आपको यहाँ पे वेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. अब देखो पावर, अगर हमें फर्स्ट वाली गर्ल की पावर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. ये फॉर्मूलाज हैं, देखो कैसे निकालेंगे. इसमें हमको दिया हुआ है mg दिया हुआ है, क्योंकि न्यूटन में दिया हुआ है हमेशा mg होगा. जब भी न्यूटन में होता है वो mg होता है. हाउ मच? 400 न्यूटन. And height is 8 meter. And girl A is taking how much time? Girl A is taking 20 seconds. Time is 20 seconds. Now we have to calculate the power. See, power is equals to work done divided by time taken. अब देखो यहाँ पे work done तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको mg दिया हुआ है. अब ये जो वर्क डन होता है ना, अब आप इसको एनर्जी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो. आप वर्क डन को एनर्जी, एनर्जी को वर्क डन, हम एक्सचेंज कर सकते हैं. अब वर्क डन की जगह अगर हम एनर्जी लिखें, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो कौन सी एनर्जी लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? इसमें हाइट की बात हुई है तो कौन सी एनर्जी लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh डिवाइडेड बाय टाइम. mg इज ऑलरेडी गिवन 400
and h is 8 and time is 20 seconds. Easy now. It will be 160 watts. The power of girl A will be 160 watt. Similarly, the power of girl B, mg is given. अगर न्यूटन में है, देखो लिखा वेट है बट यूनिट न्यूटन में है. अगर जब भी न्यूटन में गिवन होगा इसका मतलब mg गिवन है. mg is given to you 400 न्यूटन again and height is 8 meter and she is taking 50 seconds. देखो दोनों का वेट भी सेम है, mg भी सेम है, हाइट भी सेम है, बट इसको फिर भी ज्यादा टाइम लग रहा है. फिर से फॉर्मूला लगाएंगे. p is equals to w by t. We can exchange w by e by t and which e will be used? Potential energy, क्योंकि हाइट की बात हो रही है. डिवाइड बाय टाइम. mgh divided by time. mg is already given 400 into h is 8 divided by time is 50 seconds. You can cancel it with 5 8s are 40, 8 8s are 64 watt. तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसमें पावर ज़्यादा है? गर्ल ए में पावर ज़्यादा है, 160 watt and girl B has 64 watt. So girl B expended 160 watt of power and girl B has expended 64 watt of power. अगेन सेम न्यूमेरिकल है. देखो अ बॉय ऑफ मास 50 kg. इसमें मास kg में दिया है तो यानी कि ये सिर्फ मास है. अगर kg में दिया है तो सिर्फ मास है, अगर न्यूटन में दिया है तो mg है. A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take g as 10. अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको स्मॉल g गिवन होगा, कुछ कुछ में नहीं भी गिवन होगा, तब भी आप 10 या 9.8 अपनी मर्जी से ले सकते हैं. वो आप अपना न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने जी को. अगर आपको लग रहा है 9.8 लेके कैलकुलेशन ईजी होगी, कहीं पे 980 दिया हुआ है तो आप 9.8 ले सकते हो, अगर 100 दिया हुआ है तो 10 ले सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. फॉर्मूला तो ईजी है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन. और वर्क को आप स्वैप कर सकते हो एनर्जी के साथ. और एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हैं आपको कहाँ से पता चलेगा? न्यूमेरिकल से. अगर हाइट गिवन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी एंड अगर स्पीड गिवन होगी तो काइनेटिक एनर्जी. इस वाले क्वेश्चन में मास दिया हुआ है हमें 50 kg. मास इज इक्वल्स टू 50 kg एंड नेक्स्ट इज अगर मास दिया हुआ है. देखो इसमें भी हाइट की बात हो रही है, 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड यानी कि हाइट की बात हो रही है, तो डायरेक्टली mg भी निकाल लो. 50 इंटू 10 उन्होंने बोला है ना, 10 g को 10 लेना है तो 500 न्यूटन हो जाएगा mg. देन हाइट इज गिवन टू यू 45 स्टेप्स इन 9 seconds. इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15, 45 स्टेप है, ईच की हाइट 15 है तो 40 कितनी हो जाएगी? 45 इंटू 15. एक की हाइट है 15 सेंटीमीटर तो 45 स्टेप्स की हाइट कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 45. और ये किस में गिवन है? हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें इसको मीटर में करना होगा. इसको हमें डिवाइड बाय 100 करना होगा तो ये कितना आ जाएगा? 6.75 मीटर. ये यूनिट कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना, ये हमेशा मीटर में ही होगा. जो हाइट होगी वो हमेशा मीटर्स में होगी. मास हमेशा केजी में होगा, हाइट हमेशा मीटर्स में होगी. ना टाइम हमेशा सेकेंड्स में होगा. एक बार मैं लिख देती हूँ. मास होगा केजी में, हाइट होगी मीटर्स में और टाइम होगा सेकेंड्स में. अब देखो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का. P इज इक्वल्स टू जो हमें आता है पहले वो W बाई टी. अब देखो वर्क डन कुछ है नहीं बट इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाइट दी हुई है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन की जगह हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टी. mg, the value of mg is 500 and height is 6.75 divided by time is 9 seconds. Now you can easily calculate and after the calculation the answer will be 375 watt. यानी कि उसको अपनी 375 वॉट पावर को यूज करना पड़ेगा इतने स्टेप्स को चढ़ने के लिए. 45 स्टेप्स जो कि एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, उसको इतना चढ़ने के लिए 375 वॉट्स ऑफ एनर्जी को स्पेंड करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन है. डिफाइन पावर, डिफाइन 1 watt ऑफ पावर. अ लैम्प कंज्यूम्स 100 joules ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 seconds. व्हाट इज द पावर? अब देखो ये तो इजी है.
पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. वर्क डन इज गिवन टू यू 1000 joules in 10 seconds. So the answer will be 100 watt. Define average power. Average power हमने देख लिया, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. जो हमारे जो आपने देखा होगा घर के बाहर मीटर्स होते हैं, उसी से हमारा बिल आता है. 1 यूनिट 2 यूनिट, हर डिवाइस की, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अलग अलग कंजम्पशन होती है. कुछ डिवाइसेस कम यूनिट्स लेते हैं, कुछ डिवाइसेस ज़्यादा लेते हैं. जैसे फ़ैन हो गया 4 to 3 2 ऐसे यूनिट्स कंज्यूम करते हैं. लेकिन जो बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, जैसे एसी हो गया, जनरेटर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. तो यूनिट्स होती है, कुछ यूनिट होती हैं. जो आपने देखा होगा कभी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा, उसमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग आता है. तो ये यूनिट्स क्या होती है, इससे हम पढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी. जो हमारी जूल्स यूनिट है, जो हम इसमें यूज़ करते हैं वर्क डन या एनर्जी के लिए, वो बहुत छोटी यूनिट है. उसको हम इतना इजीली यूज़ नहीं कर सकते. हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था किलोवाट आवर. ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपने बिल के लिए. जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके लिए हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं. अब 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, कितने वॉट्स होते हैं, कितने जूल्स होते हैं, कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स. एंड 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होती है. लेट अस से वी हैव मशीन दैट यूजेस 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड. कोई मशीन है जो कि 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करती है हर सेकेंड में. इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 hour इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी. Thus 1 kilowatt is the energy used in 1 hour at the rate of 1000 joules per second. तो 1 किलोवाट आवर में क्या क्या होता है, 1000 जूल्स होते हैं 1 सेकेंड में. इससे बना है ये 1 किलोवाट आवर का मतलब है, देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको हाईलाइट करो. 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 hour एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड. और 1 hour में कितने सेकेंड होते हैं, 3600. सो 1000 इंटू 3600, ये आ जाएगा 360000 जूल्स. इसलिए हमने लिखा 3.6 इंटू 10⁶ जूल. द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर. हम इसे में यूज करते हैं किलोवाट आवर में. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स. हम घर में क्या यूज करते हैं, यूनिट. और यूनिट, एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के. 1 unit is equals to 1 kilowatt hour. एंड ये समझ आया कैसे आया, क्योंकि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1000 जूल्स की एनर्जी हम यूज कर रहे हैं 1 hour में. एंड 1 hour में कितने सेकंड होते हैं, हमेशा टाइम को हमें सेकंड्स पे लेना है. तो 1000 इंटू 3600, वहां से आया ये 3.6 इंटू 10⁶. अब देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड. ये वाला एग्जांपल करते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट, दैट मीन्स पावर इज गिवन टू यू 60 वॉट, इज यूज फॉर 6 hour पर डे. कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, 6 hour. टाइम इज इक्वल्स टू 6 hour पर डे. कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 day बाय द बल्ब. देखो ये वॉट में दिया है, जब भी हमें ये वाली कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि किलोवाट में निकालना है. यूनिट्स निकालनी होती है, बिल निकालना होता है, तो हमेशा इसको किलोवाट में करेंगे. तो ये हो जाएगा 0.06 किलोवाट आवर, 0.06 किलोवाट. टाइम तो आवर्स में गिवन है, इसमें हमें टाइम को आवर पे लेना है. देखो ये जो यूनिट वाले क्वेश्चन है ना, यूनिट हो गया, आपके घर का बिल हो गया, इसमें आपको पावर लेनी है किलोवाट में और टाइम लेना है आवर्स में. लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें यूनिट्स नहीं पूछी, बिल नहीं पूछा, उसमें आपको नॉर्मली पावर को लेना है वॉट्स में और टाइम को लेना है सेकंड्स में. ये डिफरेंस है, ये याद रखना. पावर विल बी 0.06 किलोवाट, क्योंकि ये वॉट्स में गिवन थी. हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. टाइम आपको दिया हुआ है 6 hour. अब एनर्जी निकाल लेंगे, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी. ये कैसे आया, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ पावर, P इज इक्वल्स टू W बाई टी. मैंने आपको बोला था ये जो वर्क डन है इसको हम एनर्जी के साथ स्वैप कर सकते हैं. तो वर्क डन और एनर्जी विल बी P इंटू टी.
अब देखो पावर तो गिवन है 0.06, टाइम भी गिवन है 6 आवर्स, एंड द आंसर विल बी 0.36 किलोवाट। किलोवाट या किलोवाट आर, क्योंकि टाइम भी तो है किलोवाट आर, एंड 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.36 यूनिट्स, यानी कि उसने इतनी यूनिट कंज्यूम की है। ये जो बल्ब था उसने 6 आवर्स में, एक दिन में इतनी यूनिट कंज्यूम किया। तो आपका बिल जो आता है वो इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आता है। ये हर डिवाइस की अलग होती है एनर्जी कंजम्पशन, इसीलिए हर डिवाइस का अलग अलग रेटिंग्स होती है। तो एक बल्ब ने, अगर एक बल्ब 6 घंटे के लिए रोज चल रहा है तो उसमें कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही है? 0.36। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक वाज पावर ओनली and most of the topics are omitted, so that was all about this chapter. Revise this chapter. If you have any doubts, do comment down below. Subscribe to the channel and join the Telegram group for more updates. I'll pin the Telegram link in the comment section. Thank you for watching. See you in the next one. Bye bye.